सिगरेटों का हिसाब बना रहे हैं। बनाओ। तीन हमारे हाथों में आगे की ये तीन हमारे हाथों में 13 सिगरेटें तुम लाए, ये तीन हमने जलाई। देखो एक एक वैसे आप कितनी सिगरेटें लाए? 13 सिगरेटें वैसे सही है। 13 सिगरेट मैं कर रहा हूँ सही है। अब बराबर हिसाब होना चाहिए, बराबर हिसाब है सही। ये तीन सिगरेटें चल गई उसमें से, बची कितनी? 10। Powering up Mayabook for the first time in 17 years. I haven't been on this in 2005, so I bought this charger offline. It's in really good condition, and we're gonna see if it still works. See if this thing is gonna turn green. I know. I remember. Bro, oh my God! If this turns on, dog. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? आई बिलीव सारे बच्चे ठीक होंगे भाई। जिन बच्चों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो दूसरा वाला एडिशनल ग्रुप ना ज्वाइन करें। वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने ये बेसिकली हाउस ये जो हमारी मीटिंग है ये फुल हो चुकी है। इट्स लाइक 99 और 99 से ऊपर फिर हम ऑब्वियसली इसमें नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो इस ग्रुप में है बच्चे वही सारे दूसरे ग्रुप में ना आए। और दूसरी बात ये है कि आई बिलीव आज सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे प्रोजेक्ट को अपने एग्जीक्यूट कर पाएंगे जो जिन बच्चों ने पिछला सेशन लिया था और जो बच्चे ग्रुप में आ चुके थे, सिवाय उन कुछ बच्चों के जिनके पास ये प्रूफ था कि उनके पास कनेक्शन इशू था और उन्होंने इन्फॉर्म किया। सिवाय उन बच्चों के बाकी कोई भी बच्चा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा इस प्रोजेक्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मेरी जो जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे बैक साइड पे एक बिल्डिंग है जिसके अंदर थोड़ा सा काम चल रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो ओके, कैन शेयर योर स्क्रीन। सॉरी, अनदर एकर्ड। ओके क्यों भाई? Manufacturing plant, or do you manage a manufacturing plant? Do you face some production problems and look for a simple and effective solution for them? Do you want to adapt your plant to Industry 4.0 for less production cost, better quality products, shorter production cycles, more efficiency at every production level? If you do, let's hear Steve's story. He used to manage factory trouble. There were a lot of problems in factory trouble, causing disruptions on production line, delayed delivery, therefore causing unnecessary expenses. What kinds of problems were these? Steve could not monitor the production line. Were the machines in production now, or were they in standby? Was the production completed or needed to be in progress? How much time is required for a job order? Steve didn't know these issues exactly and couldn't get accurate data from the documents. There was no notification when a machine stopped working frequently or when a breakdown occurred during the production.
It took some time until the problem was noticed, so machine and equipment efficiency could not be estimated. Steve couldn't estimate his employees' efficiency. He didn't know whether they worked efficiently during their shifts or they were causing disruptions. He didn't even know if their breaks took longer than it should be. There was no real-time data for stock movements. Sometimes this could result in a total mess. One day, Steve met Meta Smart Factory. They presented to him one single, efficient, and the smartest solution to overcome these problems. Steve accepted immediately. Their team sent and installed their products to every machine, and they installed their application to Steve's computer and Steve's phone. Now, Steve can monitor all production flow from his computer. He can plan job orders. He can manage all production processes accurately. He can even follow these using his mobile phone when he's at home or when he's on vacation. When a machine breaks down, Steve and his maintenance team get notified immediately. Following that, the team can respond to the failure by arranging a repair process. Steve knows when the machine starts working. Now, there is no more mess in warehouses. How many products or supplies are there in warehouses? How many of them will be transferred? All stock transfer. हेलो, किसी को आवाज आ रही सर? नो सर। सर का शायद कनेक्शन इशू है। I'm sorry, मेरे पास कुछ इंटरनेट कनेक्शन इशू था. So we were in the middle of a video. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। ये बेसिकली वीडियो जो है, दिस इज अ टिपिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हर इंडस्ट्री और हर फील्ड में अब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा. दैट वाज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन साइड. हो ये रहा था कि एक फैक्ट्री की उन्होंने बात की जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, बट प्रोडक्शन हो तो रही है लेकिन सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है. हर डिपार्टमेंट अकेला और अलग काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो ओनर है उसको समझ नहीं आ पा रहा कि एक्चुअली फॉल्ट आ कहाँ रहा है और मैं खड़ा किस जगह पे हूँ. ठीक है, उसके पास किसी किस्म की कोई स्टैट्स नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं पता. वेयर हाउस किस तरह से काम कर रहा है, सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है, ही डजंट नो एनीथिंग. ठीक है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसने एक कंपनी जो कि एक थर्ड पार्टी कंपनी थी उससे राब्ता किया और उन्होंने आके उसको सारे सिस्टम्स लगा के दिए और प्रॉपरली हर चीज के डैशबोर्ड्स बना के दिए. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड इंडस्ट्री 4.0. कैसे जाते हैं, एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम लगाते हैं और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके एक सिंपल एक यूनिफाइड क्लाउड के ऊपर लेके जाते हैं. बट हर डिपार्टमेंट
इवेंचुअली इंडस्ट्री 4.0 पे जाएगा किसी भी फैक्ट्री की अगर आप बात करें। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं किसी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी की, जहाँ पे सेल्स के ऑपरेशन है, जहाँ पे उनके इंजीनियरिंग ऑपरेशन है, जहाँ पे उनकी जो इंजीनियरिंग की प्रोडक्शन हो रही है, या जहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे ऑटोमेशन हो रही है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने भी अपना सारे का सारा डेटा क्लाउड पे लेके जाना है, ताकि जब टॉप मैनेजमेंट को जिस चीज की जरूरत हो वो आके देख ले। और अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, हम बगैर उस पर्टिकुलर चीज के ऑटोमेशन की हम बात कर नहीं सकते, विच इज इंडस्ट्री 4.0 पे जाने के लिए जो ऑटोमेशन पैरामिड है। ऑटोमेशन पैरामिड मैंने पहले कभी डिस्कस नहीं किया और मैं आज बहुत ज्यादा उसको डिटेल में डिस्कस भी नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि ऑटोमेशन पैरामिड इज मोस्टली रिलेटेड टू द ऑटोमेशन, लेकिन हम उसके अंदर थोड़ी सी इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेशन पैरामिड है क्या, और ऑटोमेशन पैरामिड के लिए कुछ बेसिक चीजों को समझना क्यों हमारे लिए जरूरी है। सो बट बिफोर दैट आई वांट यू टू सी वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। लेट्स सी। ओके, दिस इज Calicito. Okay. How digital twins are being made. Okay. Let me show something to you. I can see around 120 students are here, और I believe सारे के सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके ग्रुप्स बन चुके हैं, प्रोजेक्ट के ग्रुप्स बन चुके हैं, और जिनके टीम लीड्स भी असाइन हो चुके हैं। अगर कोई स्टिल ऐसा बच्चा है जिसके नहीं है और जिसको मैंने एक्सेप्शनली अलाउ नहीं किया, तो वो बता दे। सर मेरा नहीं हुआ अभी अलाउ। आपका नाम क्या है? मेरा फरियाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा भी नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ। एक करके सर मेरा भी नहीं हुआ। सर मेरा भी नहीं हुआ। तुम लोग के क्यों नहीं हुए? कहाँ सो रहे थे तुम लोग? You actually people are those people जिन्होंने पिछला सेशन मिस किया और विदाउट एनी इंटीमेशन मिस किया, इसलिए तुम लोगों को सबको आउट कर दिया गया। सर मेरा तो कनेक्टिविटी मेरा भी नहीं हुआ, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। सर लास्ट सर मैंने भी इन्फॉर्म कर दिया था सर, उसके बाद बेटा जिसने इन्फॉर्म किया था सर मैंने सेशन ज्वाइन किया था बट अटेंडेंस नहीं लगाई थी। आई गेस क्यों नहीं लगाई भाई? क्यों नहीं लगाई अटेंडेंस? आपने सेशन ज्वाइन किया, बीच में छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरे सेशन में बार बार कहा था कि ग्रुप्स बन रहे हैं, एंड यू इवन डिडंट बॉदर कि सेशन में क्या हुआ। वाहिद दीनों ने उसकी सेशन का लिंक भी शेयर किया, तुम लोगों ने फिर भी नहीं देखा। सो जिन बच्चों ने मुझे मैसेज पे इन्फॉर्म किया था उनके लिए सिर्फ एक्सेप्शन है, जिन्होंने नहीं इन्फॉर्म किया वो अगली इंटर्नशिप इसी सेशन से ज्वाइन करेंगे। आखिरी 2 सेशन में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन करेंगे। मैंने हमेशा कहा है आई हेट दिस कैजुअल एटीट्यूड जो इन्फॉर्म ना करने वाला है। मैंने बार बार ये चीज समझाई थी और तुम लोग अपने इस रवैये को ठीक नहीं कर सकते। अब जिन्होंने मुझे नहीं इन्फॉर्म किया था, जिनके पास प्रूफ है, ये स्क्रीनशॉट है, वो तलहा वकार को दिखा दे, या मरियम इरफान को दिखा दे, समरा को दिखा दे, ये 3-4 जो बच्चे हैं, 5 बच्चे जो भी टीम लीड्स हैं, इनको दिखा देंगे, किसी न किसी ग्रुप में अकोमोडेट कर देंगे। जिसके पास प्रूफ है कि मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया, और जिसके पास ये जस्टिफिकेशन है कि जी वो जी आया था और जी उसका इंटरनेट चला गया और फिर इंटरनेट के साथ वो भी चला गया, उसके लिए भाईजान आई एम सो सॉरी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दैट स्टूडेंट डिजर्व दिस। यू नेवर बॉदर कि जी क्या हुआ सेशन के अंदर, क्या नहीं हुआ। तुमने सिर्फ ये देखा है कि भाई मैं आया था, मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि मुझे कहा भी गया था अटेंडेंस लगा देना, लेकिन मैंने फिर भी नहीं लगाई। मैंने कहा नहीं यार मैं शहजादा हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा अटेंडेंस, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सो भाई अब भुगतो, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने ग्रुप बना दी और ग्रुप के अंदर सारी चीजें हो भी गई हैं। इससे अलावा अगर किसी के पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम था जिसने मुझे इन्फॉर्म भी किया था तो वो बता दे, मैं अभी फटाफट उसको अकोमोडेट करवा दूंगा। सर मेरा ये प्रॉब्लम था, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था मरियम इरफान को। क्या नाम है? मेडिकल सर सैयद माविया ज़हूर। सैयद माविया ज़हूर। माविया ज़हूर। मरियम इसने इन्फॉर्म किया था आपको? जी सर इन्होंने इन्फॉर्म किया था सैटरडे को मुझे, और सैटरडे के सेशन का, बट वो सेशन फिर संडे को शेड्यूल हो गया था, तो मैं उनको ही कर लूंगी ग्रुप में। हाँ ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है भाई, तो तुम्हारे मामला रिजॉल्व हुए हुए।
जिसके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसका मसला हल नहीं हुआ वो बताए। ये वाला जो है ना, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम। सर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था मेरा फिजिकल इंटर्नशिप चल रहा है, तो मैंने सैटरडे को छुट्टी ली थी, ठीक तो है, फिर उन्होंने याद है मुझे, याद है, ठीक है सर, खत्म हो गई सही है, बात। ठीक आगे है, चलो, थैंक यू। तुम एक काम करना, तला को बता देना, तला तुम्हें किसी ग्रुप में अकोमोडेट कर देगा। जी सर, थैंक अपना स्क्रीनशॉट दिखाना तला को जो तुमने मुझे इन्फॉर्म किया। यू। जी सर, थैंक यू। जी सर मैंने आपको बताया था मेरे फैमिली इशू था। ठीक है, आपका याद है मुझे, जुफिशा। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने बोला था ठीक है। सो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा ना इस चीज का? जी मैंने अब्दुल्ला को फॉरवर्ड कर दिया है। बस ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आपने अब्दुल्ला को फॉलो कर दिया है, ठीक है, वो आपको कर देगा। इसके अलावा सर मैंने आपको मैसेज किए थे। क्या नाम है आपका भाई? सूरज। सूरज आपने मैसेज किया था, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा ना मैसेज का? जी सर, जी सर। बस ठीक है, जिसके पास है स्क्रीनशॉट मैसेज का वो जो है वो दिखा दे बाकी लोगों को। इसके अलावा किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम? सो आई बिलीव नहीं है, ठीक है। और बच्चों, मैं आई वांट टू ओपन स्क्रीन फॉर यू गाइस, बट व्हाट इज दिस? ब्लॉक करते हैं इसको। आप लोगों को ये ऑटोमेशन पैरामिड नजर आ रहा है? यस सर। रुको मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो सिर्फ गूगल मीट की स्क्रीन नजर आ रही है। सॉरी, कोई इमेज शो नहीं हो रहा, गूगल मीट की स्क्रीन ही शो हो रही है। अभी रुको, वैसे शो नहीं हो रहा है। शो होगा। ओके, अलाउ करते हैं। अब देखो, आ रही है सबको ऑटोमेशन पैरामिड आ रहा है नजर? यस सर, हमारे ओके ओके। अब ये बात समझाने की ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक टिपिकल इंडस्ट्री की एग्जांपल है आपके सामने, जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है, मैनेजमेंट बैठी हुई है, रिपोर्टिंग हो रही है, और बराबर में आप देखें तो एक ऑटोमेशन पैरामिड है। अब देखो, इसको जरा समझना है, किस तरह से समझना है। फील्ड लेवल आपको नजर आ रहा है, जहां पे आप देख रहे हो कि ये इनकोडर्स लगे हुए, सेंसर्स लगे हुए, फील्ड डिवाइसेस होंगी इसके अंदर, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, एक्चुएटर्स। ये सेंसर्स प्रोसेस इंडस्ट्री में भी लग सकते हैं, ये सेंसर्स किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इन सेंसर से क्या होगा? डेटा आएगा। डेटा कहाँ पे आएगा? पीएलसी में आएगा, ठीक है। अच्छा, पीएलसी में आने के बाद वो डेटा किधर जाएगा? सुपरवाइजरी यानी कि स्काडा पे आएगा। पीएलसी से डेटा उठेगा, एक स्काडा के सॉफ्टवेयर पे आएगा। ये बेसिकली जो है ना, ये ऑपरेशनल लेयर कहलाती है, ठीक है, जिसके अंदर सुपरवाइजरी कंट्रोल तक चीजें हमारे पास होती है। यहां के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कहलाती है MES यानी कि प्लानिंग लेवल। यहाँ प्रोडक्शन के लोग बैठे होते हैं। दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। प्लानिंग के लोग यहाँ बैठे होते हैं और यहाँ पे बैठ के क्या हो रही होती है कि प्रोडक्शन हो रही होती है, और एक फिजिकली पेपर चल रहा होता है पूरी फैक्ट्री में, जिसके अंदर ये सब लिखा जा रहा होता है कि जी आज कितनी प्रोडक्शन होगी, आज कितनी होगी, और फिर ये डेटा बाय हैंड फिलअप होता है और ERP के अंदर जा रहा होता है। ERP इज द मैनेजमेंट लेवल, जहाँ पे ये सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बैठ के ये सारे लोग प्लानिंग करते हैं कि यार अब हमें क्या करना चाहिए, कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन पैरामिड। ये ऑटोमेशन पैरामिड ही ट्रांसफॉर्म हुआ इंडस्ट्री 4.0 में जाके, जहां पे सुपरवाइजरी लेवल से नीचे नीचे तक का जो डेटा था ना,
वो भी एक क्लाउड पे आने लग गया। MES का डेटा भी क्लाउड पे आया, ERP का भी डेटा क्लाउड पे आया, ये सारे का सारा डेटा एक जगह पे आया और इसके बाद ये डेटा सबके लिए अवेलेबल हो गया। सो जिस जगह पे आता है उसे हम कहते हैं यूनिफाइड नेम स्पेस, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करेगा और जब जिसको उस डेटा की जरूरत होगी वो उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये चीजें होंगी किस तरह से। अब ये तो एक थ्योरेटिकल मॉडल है, यहां से आगे इसको फिजिकली अप्लाई किस तरह से करना है और इन चीजों का डिजिटल ट्विन कैसे बनाना है। व्हाट इज डिजिटल ट्विन? डिजिटल ट्विन ये है कि ये सारी की सारी चीजें आपने डिजिटली फॉर्म में एग्जैक्टली इनका एक रेप्लिका क्रिएट कर लिया और आपने उस जो रेप्लिका क्रिएट किया है क्लाउड के ऊपर, उसके अंदर आप चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग करने के बाद आप ये देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रही है रियल टाइम पे जब हम चीजों के अंदर चेंज करेंगे, और उसके बाद फिर आप चीजों को आगे लेके चलते हैं। राइट, ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now I will stop sharing this screen और हम वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है जी, now there are certain stages of industry 4.0. ये तुम लोगों को अब जो है ये नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. जी सर। ठीक है, there are certain stages, first stage, second stage, third stage और fourth stage of industry 4.0. पहली जो स्टेज है ना, जिसे हम कहते हैं कि जो इस वक्त जो इंडस्ट्री में हो रहा है हमारे पास, वो ये स्टेज है जहां पे फिजिकली काम हो रहा है। ठीक है, पार्शियली ऑटोमेशन हुई है और पार्शियली नहीं भी हुई। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आपको सारे वर्कर्स नजर आ रहे हैं, मशीन टूल्स नजर आ रहे हैं और आपस में कोई चीज भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड स्टेज है जहाँ पे ये रोबोट्स आ गए, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आ गए। अब हम पाकिस्तान इसको जो है ना somehow is moving toward the second industrial stage, not industrial stage, sorry, second stage of industry 4.0. राइट, क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास रोबोट्स आ गए। अब रोबोट्स के थ्रू डेटा आएगा क्लाउड के ऊपर। ठीक है, तो ये स्मार्ट इंडस्ट्री जो भी हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये उसकी सेकंड स्टेज है कि जहां पे रोबोट्स तुम्हें इंडस्ट्री में नजर आएंगे, ह्यूमन कंट्रोल्ड रोबोट्स नजर आएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेज क्या होगी? थर्ड स्टेज ये होगी कि वो रोबोट्स खुद काम कर रहे होंगे और हम उनको प्रोग्राम कर रहे होंगे। अभी वो स्टेज नहीं आई है, अभी उस स्टेज के आने में टाइम है, अभी सेकंड स्टेज चलेगी। ठीक है, अभी इसको हम लोग सेकंड स्टेज के ऊपर आए हैं। किसी का माइक खुला हुआ है भाई? अभी इसको हम सेकंड स्टेज के ऊपर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेज मैंने आपको समझा दी कि फोर्थ स्टेज क्या आएगी। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, ये जरा देखो, चीजें खुद ब खुद चल रही होंगी, खुद ब खुद सारी की सारी चीजें चल रही होंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से चीजों को ओवरकम कर चुकी होगी। रोबोट्स ही रोबोट्स को चला रहे होंगे। दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ स्मार्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री 4.0 की इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो कि अभी दूर है, बहुत दूर है, इसके आने में बहुत टाइम लगेगा, मे बी 20-30 साल लग जाए। ये भी एक आप समझ लें कि सेकंड और थर्ड स्टेज की ट्रांजिशन है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली रोबोट्स के थ्रू हो रही होगी। ठीक है, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ वीडियो के मैकेनिकल और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री 4.0 की बाकी जगहों पे इंप्लीमेंटेशन हो गई तो कैसे परफॉर्म कर रही है। टेक अ लुक। People are at the center of what we do. Things will not be any different in the future. But what will customers want in the future?
demand a wider range of variants, as well as more personalized products. It must also be possible for production to adapt quickly to changed market requirements. Adjusting to this new situation is a formidable challenge. Industry 4.0 is the response to this challenge. But what does Industry 4.0 actually mean? It means that the Internet of Things is finding its way into manufacturing. In the factory, production will be connected. People are in control of this fourth industrial revolution. One of its features is the global connectivity of value chains across companies. For example, the configuration and personalization of cars will take on a new dimension in the future. It will be possible to freely select the size and shape of the car's information display. No two cars will ever be alike again. They will be individually tailored to customers' needs. The automaker generates design data from the 3D model and sends the data to various suppliers. There, the data undergoes a final virtual design and testing process. This is how the personalized information display we saw earlier will be created. बच्चों क्या समझ में आया, क्या हो रहा है यहाँ पे? Obviously, different customers अपने customized product के models जो है वो input कर रहे हैं and then the industry follows up on those customized orders. सही. और इसके अलावा सर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन बढ़ा है और इससे हुआ कि कस्टमर अपने हिसाब से चीजें ऑर्डर करके अपने हिसाब से एग्जैक्टली मासिव कस्टमाइजेशन जो डेटा है वो कस्टमर को जो है एक तरीके से बिजनेस के साथ जो है ना लिंक कर रहा है एंड देन बिजनेस के भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट यूनिट्स हैं वो भी आपस में लिंक हुए हुए हैं. डेटा जो है ना इजीली फ्लो कर रहा है. देखो होने क्या जा रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ. ये ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज तो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, राइट. यहाँ नहीं हुई है. यहाँ पे अभी हमने अगेन जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट टू सेकंड स्टेज की ट्रांजिशन में ये चीजें आती हैं थर्ड स्टेज के ऊपर. ठीक है, जब आप थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं और डेटा और टेक्नोलॉजी को आप इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं कि कस्टमर एंड अभी तो इसको चिपें ही नहीं मिल रही भाई, गाड़ियां क्या बनेंगी. ठीक है, अभी की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो स्टेज के ऊपर वो क्या कह रहे हैं कि हम लोग गाड़ियों की कस्टमाइजेशन कस्टमर के हिसाब से करके उसी वक्त गाड़ियों के रोल मॉडल्स उनको बना के सामने दिखा रहे होंगे. ग्लोबली सप्लाई चेन इस तरह से कनेक्टेड होगी कि जिस वक्त जो कस्टमर जो गाड़ी बनाना चाह रहा होगा या बनवाना चाह रहा होगा, अगर मिसाल के तौर पे वो कहते हैं मेरी गाड़ी की जो डिजाइन है वो इस तरह के होने चाहिए, तो इसी के पार्ट्स ग्लोबली जो हमारा सप्लायर है उसके पास भी बनना शुरू हो जाए. सो ग्लोबली सप्लाई चेन कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगी. ठीक है, मैं वीडियो की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सपोजर देना चाह रहा हूं कि ये जब इंडस्ट्री 4.0 की हम बात करते हैं तो ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है. अभी इस वक्त जितने भी इदारे पाकिस्तान में बता रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए. ठीक है, बट मेरे ख्याल में हमारे पास एक बिगर पिक्चर भी होनी चाहिए कि हमने जाना किस तरफ है, राइट. सो आप अगर हम अब कमिंग टू द लाइन थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो जब भी आप कभी भी किसी से बात करते हैं आईओटी की या इंडस्ट्रियल आईओटी की, तो उठाते बात हम कहाँ से, नोड एमसीयू से. ठीक है, ESP 828 से बात करना शुरू करते हैं कि भाई डेटा कैसे उठेगा. ठीक है जी, किस तरह से उठेगा जी कि ये पंखे मोटरें ये सारी की सारी चीजें किससे कनेक्ट होंगी, ये तुम्हारे आर्डिनो से कनेक्ट हो जाएंगी और वो फिर फर्दर किससे कनेक्ट होगा, किसी भी मोबाइल ऐप से कनेक्ट हो जाएगा या किसी भी क्लाउड से कनेक्ट हो जाएगा. यहां से हम अपनी बात हमेशा स्टार्ट करते हैं, बट ये चीजें इंडस्ट्री लेवल पे आपको इंप्लीमेंट नहीं करनी. दिस इज बुलशिट. इंडस्ट्री में ये स्टूडेंट लाइफ तक तो ठीक है, इससे थोड़ा सा आप आगे जाते हैं ना तो कम से कम आपको IoT गेटवेज से स्टार्ट करना है. आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना. ये आपने कर लिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी की हद तक आपने चीजें देख ली कि किसी भी चीज के डेटा को उठा के अगर क्लाउड के ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए जो सबसे पहली डिवाइसेस लोग यूज करते हैं वो ये वाली यूज करते हैं. ठीक है जी, हम आगे चलते हैं जरा इससे. इस टिपिकल सर्किट डायग्राम से सब लोग
आई बिलीव अच्छे तरीके से अवेयर होंगे कि किस तरह से ये नोड एमसीयू के अंदर जो वाईफाई मॉड्यूल है जो लगा होता है और वो इन सब से कैसे कनेक्ट होते हैं और हम इनको कैसे चला लेते हैं। मैं इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें तुम लोग करके आए होगे जो आईओटी की बेसिक्स हैं, हम इससे आगे की बात करेंगे। अच्छा देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि इंडस्ट्री 4.0 में चीजें किस तरह से जाएंगी। ये देखो, ये इंडस्ट्री 3.0 है जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि सारी की सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती हैं। बट इंडस्ट्री 4.0 में इफ यू सी देयर इज अ क्लाउड, इस क्लाउड के ऊपर सारी की सारी चीजों का डेटा जा रहा है और वहीं से डेटा आपस में इंटरचेंज हो रहा है, जिसको जिस तरह से जब मर्जी डेटा की जरूरत है वो ले लेता है। ये देखें, दिस इज व्हाट, इसको जरा दोबारा देख लेते हैं। फील्ड लेवल पे क्या है जी, सेंसर्स एक्चुएटर्स हैं। कंट्रोल लेवल पे क्या है, पीएलसीज हैं। उससे ऊपर क्या है, स्काडा है। फिर हमने देखा कि एमईएस सिस्टम क्या है मैनेजमेंट लेवल पे और ईआरपी इंटरप्राइज लेवल पे है, राइट। ये बेसिकली थ्योरी है, बट ये थ्योरी अगर समझ में नहीं आई होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ये वो वीडियो जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। लेट्स टेक अ लुक। इसको बहुत गौर से देखना है। Automation and internet cloud computing are evolving and merging into a space allowing for artificial intelligence or AI programming to facilitate improvements in productivity and efficiency with many economic benefits. Along with internet cloud computing and other advancements with the internet, we are now in the middle of the next industrial revolution, mining and turning data into information. This period of evolution is called Industry 4.0, or the Fourth Industrial Revolution, which includes Industrial Internet of Things, IIoT, and digital transformation mechanisms that facilitate this evolved fourth generation period of automation. अब तुम लोग यहाँ देखोगे कि ये स्टार्ट हुआ है इंडस्ट्री 1.0 से, देन 2.0, देन 3.0 और देन 4.0, ठीक है। टेक अ लुक। In this lesson, we will learn about what is the Industrial Internet of Things, or IIoT. While the Industrial Internet of Things does fall under the Internet of Things, or IoT, area of influence, the key difference is IIoT concentrates on the connections of machines and devices in industries like manufacturing, healthcare, and logistics. IoT is commonly used to define consumer-based devices like Fitbits, and a wide range of smart home devices, for example refrigerators, Ring video doorbells, lighting, thermostats, and alarm systems. IIoT is about getting information that every single consumer needs in their hands when they want it. And digital transformation is the digitization of a business and how we must move to a unified, organized data space using the International Society of Automation standard for developing an automated interface between enterprise and control systems, or ISA 95. ISA 95 essentially provides a hierarchical model for the enterprise, site, area, line, and cell. Each level of this architecture uses a specific software system to gather data for that part of the organization needs, in which creates a problem for communication between these disparate applications. With most organizations, the data is not real-time and lacks efficiency, inhibiting key stakeholders to make informed decisions. IIoT is about making decisions from information received real-time, and not from a report created from yesterday's data. The Industrial Internet of Things devices that are networked together and communicating with computer-driven industrial applications for many manufacturing and energy of a control system that allows for a significant improvement in automation by using cloud computing to enhance and optimize process controls. Industrial IoT depends on many technologies, but the key technologies primarily consist of artificial intelligence, cybersecurity, cloud computing, edge computing, and data mining. Artificial intelligence, or AI, and machine learning, or ML, are fields that are part of computer science. AI is where intelligent machines are developed and respond like humans.
And ML is where machine learning is part of AI predicting and a more accurate outcome delivered without programming. Cybersecurity technology becomes an important basic platform for IoT and IIoT, enabling disconnected machines to physically connect and communicate in a secure method. Cloud computing is basically using IT services and the files to be uploaded and downloaded from internet-based servers, opposed to using local extranet-connected servers. Edge computing is a distributed computing model, bringing data storage closer to the location where it is needed and optimizes sensors, industrial computers, and devices that are part of the IIoT system for publishing and consuming data for faster processing. Data mining and analytics are about collating and examining large amounts of data stored from various parts of the enterprise. Okay, so why should we go through this somewhat major transformation? And what are the benefits? Companies want to be more competitive, increase efficiency with just-in-time manufacturing and meeting higher customer demand with better inventory control. We can do all of this with the creation of the organization's overall automation, a digital twin. A digital twin is a virtual representation referring to a digital replication of the actual company's physical assets, processes in place, automation systems, and devices. The twin uses real-time data to enable learning and reasoning for improved decision-making. The digital twin allows experimentation with new information that is generated by cloud-based AI functions without having to shut down production or be concerned with personal safety because testing is performed in a virtual space. Also, the digital twin could be used as a training ground for new employees. हाँ जी बच्चों, ये बताओ कि अभी तक तुम लोगों को क्या समझ में आया? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज द क्रक्स। ये तुम्हें समझ में आ गई, तुम्हें सारी चीजें आगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्या बताया इसमें इन्होंने? ओके, कोई बता नहीं रहा, मैं खुद सवाल करना शुरू करता हूँ। सारे सो रहे हो, नहीं रुक जाओ, अब मैं खुद सवाल करूँगा। के कोर टेक्नोलॉजीज बताई थी, वहाँ पे ये बताया था कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इम्प्लीमेंट। सर इसमें ये भी बताया था कि जो डेटा होता है वो रियल टाइम मॉनिटर हो रहा होता है और उससे क्या कहते हैं चीज़ों को अरेंज करना और मैनेज करना आसान हो जाता है। सर इसके अंदर बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की गई है जो कि हमारा रियल टाइम डाटा को एक्सेस कर रही है और उसको इम्प्रूव करने में मदद कर रही है। और डिजिटल ट्विन ये काम कर रहा है हमारा कि वो एक्सपेरिमेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है ताकि जो भी एरर्स आ रहे थे उसको रिड्यूस करके वो अपना जो भी काम है वो इम्प्रूव कर सके। सर डिजिटल ट्विन एक्चुअली ट्रायल एंड एरर जो हमारा आ रहा है वो मेन सॉफ्टवेयर पे कोई इम्पैक्ट ना दे, तो डिजिटल ट्विन हमने इसलिए डिज़ाइन किया। हाँ जी, आवाज आ रही मेरी सबको? ओके, तो बहुत ही बेसिक लेवल पे ये चीज एक्सप्लेन उन्होंने की है कि पहले इंडस्ट्री में क्या होता था, उसके बाद किस तरह से होगा और डिजिटल ट्विन्स इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में कैसे बनेंगे। देखो, प्रोडक्शन के अंदर बनना डिजिटल ट्विन उतना ज्यादा जरूरी नहीं है या उतना ज्यादा रिस्की या उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं जितना बाकी एरियाज में, स्पेशली इलेक्ट्रिकल का डिजिटल ट्विन। सो आज हम इलेक्ट्रिकल का एक डिजिटल ट्विन देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल का डिजिटल ट्विन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हमने एक डिजिटल ट्विन बनाया जो कि मैं अभी आप सबको दिखाने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से बनता है, ठीक है। और मैं इंडिविजुअली बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा
अगर तुम लोग सो रहे हो तो तुम लोग जो है ना जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। So before showing you the digital twin, मैं Raspberry Pi पे किस किसने काम किया हुआ है ये बताओ? यस सर मैंने किया। किसने? मिस्टर टी ने किया हुआ है। ये मिस्टर टी कौन है? सर मुझे भूल गए आप। ये मिस्टर टी कौन है भाई? तलहा तलहा। समरा कह रही है इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अच्छा बच्चों, इम्पोर्टेंट बात बताने की यहाँ पे ये है कि अगर आप IoT की या इंडस्ट्रियल इवन IoT की दुनिया में पहला कदम रखना चाहते हैं तो आई थिंक Raspberry Pi इज अ गुड डिवाइस टू स्टार्ट अप विद, बट नॉट Arduino नहीं, Raspberry Pi ले लो। कम से कम इंडस्ट्री में तुम लोग इसको यूज कर पाओगे। ऑल्दो ये इंडस्ट्री में यूज करने की डिवाइस नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर है। इंडस्ट्री में अगर आपने यूज करना है तो यू शुड यूज द IoT गेटवेज जो कि फिनिक्स कॉन्टेक्ट में आते हैं। मैं भी आगे चल के हम जो आज प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम IoT गेटवेज को डिस्कस भी करेंगे कि क्या होता है। PLC नेक्स्ट का तुम सबने नाम सुना है, PLC नेक्स्ट हो रही है। PLC नेक्स्ट एक्चुअली वो PLC है जिसके अंदर उन्होंने IoT गेटवेज सारे के सारे बिल्ट इन कर दिए हैं, ठीक है? सो इंडस्ट्री के अंदर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो Raspberry Pi ठीक है, आप एज अ ट्रायल बेसिस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज अ टिपिकल Raspberry Pi जो कि आजकल Raspberry Pi 4 आ रहा है, उसके अंदर वाईफाई भी बिल्ट इन है, तुम लोग उसको यूज कर सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट मेरे ख्याल में नहीं है। उसकी वजह ये है कि तुम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हो, स्पेशली जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की NIT की क्या फीस है साल की, किसी को आइडिया? सर एक सेमेस्टर यस सर अराउंड मैक्स सर 30 तक की थी। 30,000 पर सेमेस्टर या पर ईयर? पर सेमेस्टर। 2 सेमेस्टर हो गए, यानी कि 60,000 पर ईयर, राइट? यस से अब जो है फीस जाती है और उसके अलावा फिर एनुअल चार्जेस वगैरह, तो 1,20,000 इस तरह से कुछ हो जाता है। सो 1,20,000 साल के हुए, राइट? जी सर, फर्स्ट ईयर में इतने ज्यादा लेकर। ओके फाइन। तो जहां पे तुम 3-4 लाख रुपए दे के फॉर एग्जांपल या 2.5-3 लाख रुपए दे के इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहां ये 10-12 हजार रुपए की डिवाइस ले लो, क्योंकि तुम सारे बहुत चालाक हो, ट्यूशन भी पढ़ाते होगे, ठीक है? सब ये काम करते हैं, तो 10-12 हजार रुपए की डिवाइस लेना कोई बड़ा काम नहीं है। ये ले लो, ये तुम्हारी सारी जिंदगी काम आएगी। बिकॉज मुझे पता है तुम लोग अभी PLC या IoT गेटवे जो कि 30-40 हजार रुपए का होता है वो भी तुम लोग नहीं परचेज कर सकते, वो इंडस्ट्री तुम्हें पैसे देगी परचेज करने के। बट इसको लो, इसके ऊपर तजर्बे करो। अगला देखो, शायद मैंने आप लोगों से जिक्र किया नहीं किया, हमारी इंटर्नशिप के ना ये लेवल्स होते हैं। दिस इज लेवल 1 इंटर्नशिप, जिसे हम कहते हैं बेसिक इंटर्नशिप, ठीक है? इस बेसिक इंटर्नशिप में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एक बेसिक ओवरव्यू देते हैं कि चीजें क्या है और किस तरह से हैं, इंडस्ट्री 4.0 जनरली क्या है और IoT गेटवेज क्या है, चीजें काम किस तरह से करेंगी, ये हम सिर्फ ओवरव्यू देते हैं। इसके बाद जो है ना वो आती है इंटरमीडिएट लेवल इंटर्नशिप, जिसके अंदर आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा कि Raspberry Pi से किसी भी फील्ड डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। बाय द वे, फॉर यू विच इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज Node-RED। सब अपने पास लिख लो। Node-RED के ऊपर अभी हमारी ये जो इनक्रेडिबल्स वाला है ना, ये क्या नाम है, अज़द जो है, इसी के ग्रुप में एक लड़का है मंजूर, ये Node-RED के ऊपर एक वर्कशॉप अरेंज करवा रहा है, ठीक है? मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो Node-RED की वर्कशॉप कब होगी। वो वर्कशॉप आप लोग लाजमी लीजिएगा। Node-RED बेसिकली आपको ये बताएगा कि एक तो बहुत ही जबरदस्त क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्लाउड पे इंस्टॉल हो जाता है और उसको यूज करते हुए आप दुनिया की हर जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो उस वक्त भी आप अपने डैशबोर्ड उसी पे बना रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, हमारी जो PLC नेक्स्ट है उसकी अच्छी बात ये कि वो भी उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी है कि वो Node-RED कंपैटिबल है और हमारी PLC नेक्स्ट जो उसके अंदर वेब बेस्ड HMI भी बन जाती है। काफी सारी चीजें हैं जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ। तो ये बड़े मजे के और बड़े बेहतरीन टूल्स हैं।
जिसकी अभी आगे चल के कुछ वर्कशॉप्स आएंगी, मेरे ख्याल में 2 घंटे की कोई वर्कशॉप आएगी, कोई 1.5 घंटे की वर्कशॉप आएगी। मैं ये इन टेक्निकल चीजों में जानबूझ के इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज ये चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा बोर करती हैं। सो मैं चाहता हूं कि इनकी प्रॉपरली वर्कशॉप्स हो जाए या इनकी कुछ ट्यूटोरियल्स या वीडियोस हो जाएं जो आप लोग देखें और उसके बाद करना शुरू करें, वो बच्चे जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हों। हर बच्चा टेक्निकल चीजों में जाना भी नहीं चाहता और ज्यादातर बच्चे टेक्निकल चीजों में बोर हो जाते हैं। एक बच्चा पूछ रहे हैं इंटर्नशिप स्टार्ट कब होगी। देखो 1 दिसंबर को वो वाली इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, बट वो बहुत ज्यादा उसके अंदर मैं बेसिकली जो चीजें सिखा रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको वो PLC नेक्स्ट सिखा रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि वो हमारी अपनी प्रोडक्ट है। तो PLC नेक्स्ट के थ्रू Node-RED को कैसे कम्युनिकेट करना है, 12-13 सेशंस होंगे उसके अंदर टोटल, ठीक है। तो वो इंटर्नशिप होगी तुम्हारी या इसी तरह 6 वीक की होगी, दिसंबर में स्टार्ट होगी। वो PLC से रिलेटेड है ज्यादा इंटर्नशिप, जिसके अंदर इंडस्ट्री 4.0 के अंदर आपने PLC को किस तरह से यूज करना है, वो बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टेड होगी। उसकी वजह ये कि उसके अंदर आपको वेब बेस्ड HMI बनाना हम सिखाएंगे कि वेब बेस्ड HMI कैसे बनती है, और विल इट कवर PLC प्रोग्रामिंग। हाँ, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा उसके अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा कि PLC क्या होती है, लैडर लॉजिक क्या होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। उसकी वजह ये कि फिर वो चीजें बोर करना शुरू कर देती हैं। मैं 1-1 घंटे का भी नहीं, शायद आधे घंटे का मैं सेशन लूंगा और मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि ये देखो ये PLC नेक्स्ट मेरे पास पड़ी है और इससे मैं ये डेटा ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे उठा के इस क्लाउड के ऊपर लेके जा रहा हूँ। डिफरेंट क्लाउड्स को, AWS को हम डिस्कस कर लेंगे, हम उसको कर लेंगे, Azure को कर लेंगे, Firebase को डिस्कस कर लेंगे, Node-RED को तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और IBM Watson तो ऑब्वियसली हर किसी को पता ही है उसके बारे में। तो 3-4 क्लाउड्स को डिस्कस कर लेंगे, Node-RED को डिस्कस कर लेंगे, और PLC से डेटा किस तरह से उठाना है, IBM Watson, तो PLC से डेटा किस तरह उठाना है, PLC नेक्स्ट से हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगी प्रोबेबली दिसंबर के अंदर, और ये भी इसी तरीके से 12-13 सेशंस होंगे इसके। तो इसके अंदर कम से कम तुम्हें इंडस्ट्री IIoT की ऑन हैंड्स नॉलेज आ जाएगी कि PLC नेक्स्ट को किस तरह से यूज करना है, ठीक है। और हाँ ठीक है, PLC नेक्स्ट को किस तरह से यूज करना है, और मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि इसके अलावा IoT गेटवेज कौन कौन से मौजूद है, राइट। सो बट उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो बच्चे आए उस इंटर्नशिप के अंदर उन सब के पास अपनी रास्पबेरी पाई हो, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि वो PLC नेक्स्ट के साथ में तुम लोगों की रास्पबेरी पाई को कनेक्ट करूं। मिसाल के तौर पे लोकेश है, इसने कहा इसके पास है रास्पबेरी पाई, तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये देखो ये लोकेश की रास्पबेरी पाई है और ये मेरी PLC नेक्स्ट यहाँ मौजूद है, और मैं अपनी PLC नेक्स्ट से यहाँ से लोकेश की रास्पबेरी पाई को एक्सेस करूंगा और इसकी रास्पबेरी पाई से आगे मैं मिसाल के तौर पे कोई किसी चीज को ऑपरेट करके दिखाऊंगा, और फिर मैं लोकेश को कहूंगा कि अपनी रास्पबेरी पाई से मेरी PLC नेक्स्ट यूज करो और इससे किसी डिवाइस को ऑन एंड ऑफ कराओ, ताकि तुम्हें पता चले कि PLC मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है इंडस्ट्री के अंदर। मिसाल के तौर पे एक PLC सीमेंस की लगी हुई है, सीमेंस की PLC से डेटा कैसे उठेगा और PLC नेक्स्ट पे कैसे आएगा, यहां से उठ के क्लाउड पे कैसे जाएगा, विदाउट यूजिंग एन इंटरमीडिएटरी IoT गेटवे। जी लोकेश कुछ कह रहे हो? ओके, लोकेश कह रहा है थ्रू रिमोट एक्सेस। हाँ भाई, थ्रू रिमोट एक्सेस ही होगा, डोंट यू वरी। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे MQTT प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, OPC UA प्रोटोकॉल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और पीछे कुछ डेटाबेसेस को डिस्कस करेंगे। मतलब काफी टेक्निकल है। वो जो अगली इंटर्नशिप है वो बच्चे ले जिनको टेक्निकल चीजों में डीप डाइव करने का बहुत शौक है। मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मजबूरी है, तुम लोगों को सिखाना है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बट मैं एक ऐसा बंदा हूं जो मुझे टेक्निकल चीजों में घुसने का बहुत ज्यादा शौक नहीं होता। मैं चाहता हूं कि यार ओवरव्यू चीजों का लिया जाए और टेक्निकल काम के लिए दूसरे लोग हों और मैं फ्रंट एंड पे जाके लोगों से गपशप लगाऊं, बात करूं, बिकॉज मैं एक बिजनेस मैनेजमेंट का बंदा हूं। आप लोगों में से वो बच्चे, यस, अब एक लड़का है मंजूर यहाँ पे, पता नहीं है या नहीं अभी, और एक है वाहिद सामू। इन दोनों को मैं हेल्प कर रहा हूँ। कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम एक डेवलप करना चाह रहे हैं हम, जो कि कुछ फार्मास्यूटिकल्स भी इस वक्त कर रही हैं। ये बेसिकली IoT बेस्ड है। जिन बच्चों ने फ्यूचर में बायोसाइंसेस में जाना है या फार्मास्यूटिकल्स में जाना है वो मुझे बताएं, तो मैं उनको हेल्प करके वाहिद दीनों और मंजूर के साथ उनको कनेक्ट करवाऊंगा। एंड वी आर डेवलपिंग अ कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई होगा, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी अप्लाई होगा, और जो कि मैकेनिकल इंडस्ट्री हर जगह अप्लाई होगा। तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो मंजूर से राब्ता कर ले और मंजूर विल मेक अ लिस्ट।
हम क्या करेंगे, हम काम सब आपस में डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा काम सारे करेंगे एंड टुगेदर वी विल मेक अ कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, और फिर हम उसी कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की फिर लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि उन्हें किस तरह से करना है। बट ये जो सिस्टम होगा दैट विल बी मेड ऑन फिनिक्स कॉन्टैक्ट, ये फिनिक्स कॉन्टैक्ट के ऊपर बना हुआ होगा, ठीक है। मैं किसी और पीएलसी पे नहीं करवाऊंगा, उसकी वजह ये है कि खैर पीएलसी के बगैर ये रास्पबेरी पाई पे भी हो जाएगा। तो बच्चों रास्पबेरी पाई लेना जरूरी है, बगैर इसके तुम लोग को मजा नहीं आएगा, सारी थ्योरी हो जाएगी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाओगे। 10-12 हजार रुपए की तो बात है, कर लो खर्च यार, इतने के तो तुम लोगों के पास मोबाइल भी होते हैं ना, तो ये एक जी हुई देयर। हमने है आसमा है जी आसमा बेटा, आर्डिनो यूज की हमने, और आर्डिनो 1000 तक कहता है, 2000 तक मेरे पास है। नहीं असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो रही थी, सॉरी दोबारा रिपीट कर सकती हो आप? सर हमने जो है वो आर्डिनो लिया था यूनिवर्सिटी में, और उससे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे, और 1-2 हजार तक, 2-3 हजार तक मिल गया था वो। आई एग्री, देखो 2-3 हजार तक तो मिल जाएगा ना, मैंने बताया कि आपको आर्डिनो तो सस्ता है। मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो रास्पबेरी पाई है, मेरे पास तो खैर पीएलसी नेक्स्ट भी है, बट मैं ये चाहूंगा कि देखो आर्डिनो से कनेक्ट करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, मतलब आई मीन इट्स अ पीस ऑफ केक, आर्डिनो से कनेक्ट करना कोई मसला नहीं है, बट इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि अब तुम सारे के सारे बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी के मेरे ख्याल में आखिरी सेमेस्टर के करीब करीब तो खड़े हो, तो क्यों ना हम वो बात करें जो इंडस्ट्री में बात हो रही है, हम वो बात ना करें जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स करने हैं। अगर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स करने हैं तो उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग इदारे कराची में मौजूद है जो आपको पीएलसी की ट्रेनिंग और आईओटी की ट्रेनिंग्स देते हैं। दीज थिंग्स शुड बी डन ओवर देयर। मेरे पास जब आ रहे हो एक प्रोफेशनल इंटर्नशिप करने, तो मैं तुम्हें प्रोफेशनल लेवल पे चीजें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना सिखाऊंगा जो इंडस्ट्री में यूज होंगे। अब मिसाल के तौर पे एक बच्ची है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गई, राइट। अब वो चाहती है कि जी मैं आई शुड बी द वन, हमारी ग्रुप के अंदर ही है वो बच्ची, आई शुड बी द वन जो कि अपनी इंडस्ट्री के अंदर जाके इन इंडस्ट्री 4.0 के सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करे। तो वो क्या करेगी, जैसे ही उसने जाके वहां पे ये बोला आर्डिनो, थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे, बोलेंगे गलती होगी तुम्हें हायर करके, आर्डिनो पे काम करोगी तुम, हमारी अरबों रुपए की मशीनरी डिस्ट्रॉय करोगी तुम, आर्डिनो पे काम करेंगे। नो वे, सोचना भी नहीं, आर्डिनो के ऊपर बात भी नहीं करनी हमने। मंजूर अभी रुक जाओ, कम से कम हम बात करेंगे अपनी रास्पबेरी पाई से। अच्छा तुम्हें अगर मसला हो रहा है ना, 2-3 बच्चे मिलके एक रास्पबेरी पाई ले लो, ठीक है, 3-3, 4-4 हजार रुपए लगा के, फिर भी अगर मसला हो रहा है तो फिर कुछ सोचते। मंजूर के पास कोई सजेशन है? जी सर मैं कह रहा था कि वैसे तो पहला आइडिया तो ये है कि ग्रुप में करके रास्पबेरी पाई 4 ले लें, बट इनकेस अगर इंडिविजुअल लेना चाह रहे हैं तो सर अगर तो मैं नहीं समझता कि प्रोजेक्ट हमारा मतलब रास्पबेरी पाई को फुल यूटिलाइज करेगा, तो हम रास्पबेरी पाई 2 या 1 पे भी तो जा सकते हैं ना। नहीं वाईफाई की जरूरत है ना, बगैर उसके काम नहीं होगा। नहीं सर उनमें भी 2 में भी आता है वाईफाई ना। 2 में वाईफाई आता है, उसमें भी होता है, लेकिन दूसरा मसला ये है कि रास्पबेरी रैम पाई की कमी होती है, रैम थोड़ी प्रोसेसिंग पावर कम होती है। यार मेरे पास भाई रास्पबेरी पाई 4 है और वो आग की तरह गर्म हो जाती है जब थोड़ा सा मैं डेटा एक्सेस उसके ऊपर से करता हूँ। और यार क्या चक्कर है, मतलब 10-12 हजार रुपए खर्च कर लो यार, क्या हो गया। नहीं सर उनके लिए जो मतलब इंडिविजुअल लेना चाह रहे हैं, मतलब कोई ग्रुप नहीं है उनके पास फिलहाल, उनके लिए क्या। अच्छा एक और काम ये हो सकता है कि तुम लोग अपनी आर्डिनोज ही रखो। मैं कोशिश आर्डिनो का भी एक मॉड्यूल है ना नोड रेड के ऊपर, मंजूर सर आर्डिनो से बेहतर सर ESP बोर्ड सही है, वो पूरा वाईफाई बेस्ड है। हाँ जी सर, नोट MCU ESP32 वगैरह यूज हो सकता है। हाँ है ना उसके ऊपर। तो यार देखो काम हो तो जाएगा, मजा नहीं आएगा बहरहाल, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा तुम लोग के आर्डिनो तुम लोग लो। बट अगर किसी को फाइनेंशियली इशू है तो ठीक है, अपनी आर्डिनो की किट ले आई ESP82 की, फिर उसके ऊपर से हम थोड़ा सा बता देंगे। आर्डिनो का मसला ये है कि यार फिर आर्डिनो में बैठ के फिर पूरे इंक्लूड के पूरे एल्गोरिथम्स लिखो, उसकी कोडिंग करना शुरू कर दो आर्डिनो के अंदर। बहरहाल खैर STEM32 भी यूज हो सकती है भाई। STEM32 का प्रॉब्लम ये है कि ये अगेन इसके ऊपर फिर सबको समझाना पड़ेगा, सबको लाना पड़ेगा, फिर इसका मॉड्यूल STEM32 का मॉड्यूल है उसके ऊपर नोड रेड के ऊपर, मंजूर या फबिया? जी सर है ना? जी सर, STEM32 और तमाम जितने भी कॉमन उसका ब्लूपिल का भी है और जो डिस्कवरी बोर्ड का भी मॉड्यूल है।
लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, हाँ ठीक है, हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, देख लेंगे। बहरहाल मैं चाहूंगा कि तुम लोगों के पास रेस्पबेरी पाई हो। अगर किसी के पास, हाजरा तुम रेस्पबेरी पाई खरीदोगी इतने के तो तुम कॉफी भी जाती हो, समझ में आई है? तुमसे मैं कोई किसी किस्म की एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। सुन रही हो नहीं सुन रही हो? अपना स्पीकर खोलो और बताओ यस और नो। ओके ठीक है, ओके। तुम तो जॉब भी करती हो यार, बाकी बेचारे बच्चे जूनियर है। तो मैंने रिसेंटली एक चीज सर्च किया कि आर्डिनो के भी जो है अब आर्डिनो लियोनार्डो और कुछ ऐसे बोर्ड्स आए हैं, उसके डिस्कवरी बोर्ड्स बाकायदा बन रहे हैं जिनको हम उनके प्लेटफॉर्म में मतलब क्लाउड सर्विसेज उनसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारी बातें तो ठीक है आपकी, बट दीज आर नॉट द इंडस्ट्रियल डिवाइसेस ना। हमने जो करना है, हमने पीएलसी के साथ, हमने जो कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना है ना, वो हमने इंडस्ट्री के हिसाब से बनाना है। तो वहां पे तुम लोगों ने अगर आर्डिनो पे काम किया होगा तो तुम फिर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अपनी डिस्कशन के अंदर कि हम इसको रास्पबेरी पाई पे ले जाएंगे। बहरहाल अगेन अगर किसी को मसला है फाइनेंशियली तो आर्डिनो रख ले, अगर किसी को नहीं है तो रास्पबेरी पाई ले ले, राइट? लेकिन आर्डिनो अगर नहीं होगी ESP8 इस मॉड्यूल के साथ, फिर काम नहीं हो सकेगा, ये बता दो। विदाउट आर्डिनो काम नहीं होगा। हम उसको वायरलेसली कनेक्ट करेंगे इसके साथ, नोड-रेड के साथ, और फिर मैं तुम्हें उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा अपनी PLC नेक्स्ट के साथ, और फिर हम एक कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे। आई विल गिव वन इनकोडर टू अ स्टूडेंट, मे बी मंजूर को दे दूं जो कराची में होगा और जिसको शौक है कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स पे काम करने का। मैं उसको एक इनकोडर दूंगा और इसके साथ मैं एक और तुम लोगों को चीज दे दूंगा, हाँ एक इनकोडर, क्योंकि वो जो हमने बनाया ना CCL फार्मा के लिए एक सिस्टम, मुझे याद दिलाना CCL फार्मा के लिए जो कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था जो उनके मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने, मुझसे वो डिस्कस कर लेना, ठीक है? और मैं तुम्हें 2-3 कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और दिखाता हूँ। फबीहा, तुमने पहले इस सिस्टम पे काम किया है? कौन से वाले सिस्टम पे सर? कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम पे नहीं सर, कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं काम किया, लेकिन ये वाला काम तो किया हुआ है कि बहुत सारे सेंसर्स को रास्पबेरी पाई से कंट्रोल करवाते हैं, ये वाला काम किया। हमने अब PLC पे काम करना है और हमने इंडस्ट्री लेवल पे काम करना है। उस इंटर्नशिप में प्लीज वो बच्चे आए जिन्होंने PLC के ऊपर काम करने का शौक है। तफरी करने के लिए नहीं आना, काम किया हुआ है मैंने, ठीक है? तफरी करने के लिए नहीं आना उस इंटर्नशिप के अंदर, बिकॉज मैं एक इंटरव्यू लूंगा और जो है मैं विलिंगनेस देखूंगा कि कौन कौन PLC पे काम करना चाह रहे हैं, बिकॉज मैं तुम लोगों को PLC नेक्स्ट पे काम करवाऊंगा। एंड PLC नेक्स्ट इज द मोस्ट सुपीरियर PLC जिसके अंदर IoT गेटवेज बिल्ट इन है, तो मैं तुम्हें उस पे काम सिखाऊंगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों के लिए है, मतलब इतने बच्चे नहीं ले सकते ना हम उसके अंदर, 100-150 बच्चे, जरा थोड़े से कम बच्चे होंगे, तो इसलिए उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो वाकई बहुत ज्यादा जो है वो हैंड्स ऑन काम करना चाहते हैं। सना, ये समरा क्या कह रही है, कैन ऑल टीम मेंबर्स गैदर एट वन प्लेस विद वन रास्पबेरी? हाँ कर सकते हो, देखो मुझे एतराज नहीं है समरा, लेकिन बात ये है कि तुम ये अपने लिए बात कह रही हो, जरा स्पीकर खोल के बताओ। समरा का लगता है स्पीकर काम नहीं कर रहा या माइक काम नहीं कर रहा। देखो तुम लोगों को मैनेज करना है, तुम लोग जैसे मर्जी मैनेज करना चाहो। अच्छा क्लास में, सॉरी, ये देखो जरा, समरा क्लास में भी है और साथ इधर सेशन भी ले रही है। तुम लोगों को मैनेज करना है, तुम लोग जिस तरह से भी कर लो, मुझे मसला नहीं है, बट इंडिविजुअली तुम लोगों के पास यार कम से कम ये 2,500-3 हज़ार वाली आर्डिनो होनी चाहिए। नोड MCU का बोर्ड एक ले लेना, नहीं तो खुद बना लेना, नहीं तो मंजूर हेल्प कर देगा, जो भी है, ठीक है? तो अब हम जरा आगे बढ़ते, राइट? ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है। उस इंटर्नशिप में सिर्फ वो बच्चे आएंगे जिनको अपनी अपनी फैक्ट्रीज के अंदर कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनानी है। अभी इसको वाहिद सामू मौजूद नहीं है, वरना वो उछल रहा होता है इन बातों पे, उसको इतना शौक है इन चीजों पे काम करने का, ठीक है? तो अब जरा देखते हैं कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जरा होते किस तरह के। बट उससे पहले ये बताओ कि कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम डिस्कस करें या हम डिजिटल ट्विन डिस्कस कर लें पहले? वी कैन फ्लिप इधर। डिजिटल ट्विन, आवाज नहीं आई। डिजिटल ट्विन सर, डिजिटल ट्विन डिस्कस कर ले। ओके, मैं तुम सबको एक लिंक भेज रहा हूँ डिजिटल ट्विन का, तुम सारे इसको जरा ओपन करो। ये चीज बहुत नई है। ओके, मैं तुम लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ, सारे के सारे। हाँ, रास्पबेरी पाई प्लस नोड MCU ने किसी एक चीज की जरूरत है ना। रास्पबेरी पाई 3 के अंदर अगर वाईफाई है, मुझे याद नहीं है, लेकिन रास्पबेरी पाई 3 का प्रॉब्लम ये है कि यार वो गर्म बहुत होती थी, मैंने इसीलिए 4 लिया है।
और मैं 4 से भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, वो फिर भी इतनी गर्म होती है, इस वजह से मैंने रास्पबेरी पाई का चैप्टर ही खत्म कर दिया। बट मेरे केस में आपके केस में डिफरेंस है। मैं इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मेरी कंपनी मुझे फंड करती है लाखों रुपए में, ठीक है, तो मैं 2-3 लाख रुपए की भी डिवाइस खरीद सकता हूँ। मतलब आई एम नॉट टिपिकली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट तुम लोग जब इंडस्ट्री में जाओगे तो तुम्हें इंडस्ट्री फंड करेगी ना यार, वो बोलेंगे यार 1.5 लाख 2 लाख कितने की है, ले लो, तुम उस पर काम कर लो। बट उससे पहले तुम्हें ये रास्पबेरी पाई 4 पे अगर तुमने ये सारी चीजें की होंगी ना, तो तुम उस पे चुटकी में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर तुमने पीएलसी नेक्स्ट की होगी तो तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी कि ओपीसी यूए का कनेक्शन कैसे बनाना है, एमक्यूटीटी कैसे यूज करना है, क्लाउड पे डेटा पुश कैसे करना है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट? मैं ये इसलिए तुम्हें कह रहा हूं। एंड आई बिलीव कि ये एक नई चीज है जो अभी तुम लोगों ने किसी और जगह पे जो कोर्सेज की उसमें नहीं पढ़ी होगी, ऐसे ही है? जी सर, ये सब चीजें बैचलर्स लेवल पे तो नहीं पढ़ाई जाती। ऑब्वियसली बैचलर्स लेवल कहां से आ गया, हम तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोर्सेज कर करके खुद ही से सेल्फ लर्निंग करनी पड़ती है। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा सुनो, मेरे पास ये कुछ सेंसर्स की वीडियोस है। अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं तुम लोगों को इनकोडर पढ़ाऊं या सेंसर्स पढ़ाऊं। इनकोडर्स के बगैर हम कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बना सकेंगे, इसलिए इनकोडर पढ़ के आना। एक इनकोडर मैं इनकोडर्स के ऊपर ना एक मैं वर्कशॉप रख लूंगा। आप लोग एक काम करना, ये ग्रुप लीव नहीं करना, जो ये भी अक्टूबर का ग्रुप बना हुआ है ना, इसको लीव ना करना, क्योंकि बीच में किसी भी दिन वीक में कोई एक ऐसा आ जाएगा मामला कि मैं तुम लोगों को ना इनकोडर के ऊपर एक जो है वो सेशन करूंगा कि इनकोडर्स क्या होते हैं। हर उन चीजों पे सेशन करूंगा जो कि जो चीजें कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम में यूज होनी है। तो जिसको उस इंटर्नशिप का पार्ट बनना है उसके अंदर फिर वो उस सेशंस को अटेंड कर ले, बिकॉज ये कुछ प्री रिक्विजिट्स मैं पहले से सिखाऊंगा। उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन चीजों पे बात करें, बिकॉज हम चीजें ना बाय हैंड कर रहे होंगे, ठीक है? तो इनकोडर पढ़ने हैं। और एक और स्टील इंडस्ट्री थी, उन्होंने अपने जो गैस फ्लो के जो क्वालिटी फ्लो रेट था, तो उसके लिए हमें ट्रांसड्यूसर्स भी पढ़ना होगा। लिख लो फबिया, तुम लिख लो, तुम मेरे ख्याल में जरूर आओगी, तुम लिख लो जरा। हमें इनकोडर्स और ट्रांसड्यूसर जो है ना 4 to 20 मिली एम्पेयर को डिस्कस करना है। ओके, ये लो भाई, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, फटाफट इसको ज्वाइन करो और देखो कि क्या नजर आ रहा है। अब ये जो है ना, बेसिकली मैंने तुम्हें एक अंडर वो आ रही है मेंटेनेंस आ रही है। ओके, हमारी वेबसाइट जो है वो ओके करंटली अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है? ये लिंक सब अपने पास सेव कर लो कि किसी भी टाइम जो है वो जाके आपने इसको ज्वाइन करना है। ये देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो भाई, हो क्या रहा है, ये हर डिपार्टमेंट का एक इन्होंने डिजिटल ट्विन बना दिया है। अब जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, जब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो एग्जैक्टली जैसा डिपार्टमेंट हमें नजर आता है वैसा ही एक वर्चुअल डिपार्टमेंट हमें नजर आता है। हम उसको क्लिक करते हैं, उसके अंदर से डेटा को एक्वायर करते हैं। तो सारे बच्चे इसको एक नजर देख जरूर लेना, ठीक है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ये क्या होते हैं, ये देखो, ये तुम्हें नजर आ रही है सारी चीज क्या क्या बनी हुई है। दिस इज अ डैशबोर्ड ऑफ अ कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि एक जीएसके फार्मा मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, उसके अंदर बना हुआ है। अगर तुम देखो इन्होंने किया क्या है, नाउ देयर आर सर्टेन एरियाज। अब जो डैशबोर्ड है वो बता रहा है कि 25 मोटर्स लगी हुई हैं, जिसके अंदर 2 क्रिटिकल है, 12 गुड कंडीशन में, 1 फॉल्टी है। सो ये जो डैशबोर्ड है, ये बेसिकली जो डैशबोर्ड है ना, ये वो डैशबोर्ड है जो मैं तुम्हें बता रहा था कि ये मैनेजमेंट इसको देख रही होगी। अब तुम देखो तो एग्जॉस्ट फैन 1 2 3 4 5। अब जो एग्जॉस्ट फैन 4 है उसके बारे में ये कह रहा है कि भाई ये स्टॉप हुआ है, 51 डिग्री इसका टेम्परेचर है, वाइब्रेशन ज्यादा हाई है और हेल्थ इसकी 4 है। हमारा काम बीइंग इंजीनियर ये है कि हमें मैनेजमेंट को इस तरह का एक डैशबोर्ड डेवलप करके देना है। अब इस डैशबोर्ड के बैक एंड में क्या काम हो रहा है वो सारा हमने करना है। वो क्या होगा भाई, अब इसमें मशीन की परफॉर्मेंस के फैक्टर्स क्या क्या है। नंबर 1 टेम्परेचर। सो क्या लगेगा, एक मशीन के साथ एक टेम्परेचर सेंसर लगेगा जिसे हम कहते हैं PT100। उसके बाद इसकी कंडीशन स्टेटस है रनिंग और नॉट रनिंग, सो एक इनकोडर लगेगा जिससे पता चलेगा कि इनकोडर की आउटपुट आ रही है। उसके बाद एक वाइब्रेशन सेंसर लगेगा जो कि बता रहा है कि वाइब्रेशंस नॉर्मल है या नहीं है।
और जब सारी चीजें गुड है, सबकी वैल्यूज एक सर्टेन लेवल तक आ रही है, तो उसका एक सर्टेन हेल्थ स्कोर भी होगा, राइट? अब जैसे ही कोई डेटा नेगेटिव में जाता है, अपने बेंचमार्क से या नीचे जाता है, तो क्रिटिकल अलर्ट जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी विल मेक अ कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर आवर मैनेजमेंट, ठीक है जी? आप डेटा कहां से आ सकता है, क्या क्या डेटा तुम लोग ले सकते हो भाई? ये देखो, एनर्जी मॉनिटरिंग हो सकती है, मशीन की आरपीएम मॉनिटरिंग हो सकती है, वाइब्रेशन, नॉइज, ये सारे के सारे फैक्टर्स हम मशीन्स के उठा के मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि भाई आइंदा आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। नाउ इफ यू सी ERP, MES, PLC, SCADA, हिस्टोरियन, सेंसर, ये सारे का सारा डेटा जो मैंने तुम्हें बताया था कि किस जगह पे आएगा, यूनिफाइड नेम स्पेस पे आएगा, वहां से वो एनालाइज होगा और फिर रिजल्ट्स किसको जाएंगे? मैनेजमेंट के पास जा रहे होंगे, ठीक है? ये सारी मैनेजमेंट इन चीजों को देख रही है, राइट? समझ में आ रही बच्चों, बात नहीं आ रही? आ रही है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ हमारा कोर्स खत्म। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो प्रोजेक्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है। जारा खान किस बात पे कह रही है सर? जारा है यहाँ पे? जी जारा, तुमने लिखा यस सर, किस बात पे? अच्छा पहले तुमने बोला था। ओके, इंटरनेट का मसला है ना, हम तक लेट पहुंच रही तुम्हारी चीजें। आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने आज वो बायोमेडिकल वाला सेशन रखा है ना, तुम भी हो उसके अंदर क्या? सॉर्ट ऑफ क्या? पार्शियली, नॉट फुली? I mean like वो मेरी सोसाइटी ने, मैं वुमेन इन इंजीनियरिंग की हूँ, बट ऑब्वियसली मेरा डिपार्टमेंट है वो। अच्छा, तुम्हें नहीं आने देंगे? आने देंगे, आना सबके लिए अलाउड है, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि कुछ बच्चे एनडी यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं ना। Yes sir. Allowed for everyone, everyone can join. सॉरी सर वो allowed सबके लिए, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके 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 ओके, दैट्स गुड। मिस्टर टी कह रहा है फास्ट से भी आ रहे हैं। अच्छा भाई, तुम भी आ रहे होगे फिर मेरे ख्याल में। ओके, सारे बच्चे जरा गौर से देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। आई बिलीव कि सबने डाउनलोड कर लिया है। दिस इज व्हाट आई अज्यूम, ठीक है सर? साइट पे ना वो जो फेस कांटेक्ट की वेबसाइट है उस पे ना मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो वो नोटिफिकेशन आ रहा है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा वहां से। भाई तुम्हारे पास एक हफ्ता होगा, कर लेना। हाँ, एक हफ्ते का टाइम होगा, इसको कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओके, आई बिलीव स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा भाई देखो, प्रोजेक्ट करना कैसे है, ये खोलोगे तुम लोग? सर नहीं नजर आ रही। आएगी। सर आ गई। सर नजर आ रही है। मेरा भी तो इंटरनेट स्लो चलता है ना, खाली तुम लोगों का थोड़ी चलता है। समटाइम मेरा भी स्लो चल रहा होता है, टेंशन नॉट। आ गई सबको? यस सर। ओके, सो ये जरा देखो, गए तुम न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है? जाके तुमने सबसे पहले एक तो भाई बच्चे इंस्टॉल्ड एंड वर्किंग पैनल ऑन पैनल डिजाइनिंग। ओके फाइन, ठीक है। तुम्हें राइट साइड पे बहुत सारे कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है? और सबसे पहले तुमने पैनल के अंदर सबसे पहले डिजाइनिंग के लिए क्या चीज लगाई जाती है, पता है किसी को? डिन रेल, माउंटिंग रेल। ये हमने डिन रेल लगा दी। डिन रेल का असूल क्या है? जब भी डिन रेल लगेगी उसके पास एक एंड पे स्टॉपर आएगा, ठीक है? जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं उसके बाद एंड पे एक स्टॉपर आता है, ये असूल है। अच्छा जी, सॉरी ओके, किसी एक बच्चे को पिक करते हैं,
मिसाल के तौर पे लुकेश कुमार मुझे सामने नजर आ रहा है, ठीक है, इसके नाम में कितने डिजिट्स हैं? LUKESHKUMAR, तकरीबन कितने हो गए? 9 10 11 हो गए, राइट? 11 है? यस सर। ओके, लुकेश क्या करेगा कि जो अपना प्रोजेक्ट बनाएगा उसके अंदर 11 नंबर ऑफ PLCs को लेगा, ठीक है। वो PLC क्या होगी? 2966171, ये PLC का मॉडल है। 2966171 लिख लो अपने पास। ये मैंने लगा दी 4 5 6 7 8 9 10 11 में भी 11। अब अगर मिसाल के तौर पे लुकेश के बाद ऊपर खंसा शफीक आ रही है, कभी ये खंसा मलिक हो जाती है, कभी खंसा शफीक हो जाती है। चलो अगर ये खंसा शफीक भी है तो KHANSASHAFIQ, ओके, ये 13 नंबर ऑफ रिलेज लेगी, राइट? क्योंकि इसके जो पूरा नाम बन रहा है वो 13 पे आ रहा है। तो आपका जो भी नाम है, कंप्लीट नाम, उतनी आप रिलेज ले लेंगे, कौन सी? जो मैंने बताई। इसके बाद आप इसको हटाएंगे और ऊपर आपको यहां पे एक पावर सप्लाई नजर आ रही है। पावर सप्लाई तुम लोग लोगे कौन सी, जरा नीचे आते हैं, ये वाली। दिस इज अ गुड पावर सप्लाई, क्विंट डायोड ले लो, ठीक है। कौन सी लोगे? क्विंट डायोड ले लेना, कोई भी। क्विंट डायोड एक बहुत अच्छी पावर सप्लाई है हमारी, ठीक है जी। इसके बाद अगली चीज क्या लोगे? टर्मिनल ब्लॉक्स तुम लोग लोगे क्योंकि PLC पैनल है ना, तो उसमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो तुम लोग लोगे UT4HES, UT4 ओके, ये रहा। हाँ भाई, ये कहलाता है फ्यूज टर्मिनल, ठीक है। तला वकार साहब, शुरू हुए तुम्हारे फ्यूज टर्मिनल? नहीं हुए अभी तक उधर? जी सर, चल रहे हैं अभी। जो शुरू हो गए फ्यूज टर्मिनल? बताओ जरा बच्चों को क्या होता है ये। हमारे यूज करते हो? फिनिक्स यूज करते हो ना तुम लोग? जी जी बिल्कुल, फिनिक्स के डब्बे आते हैं बड़े बड़े सर, बड़े बड़े डब्बे आते हैं, अच्छा। बताओ जरा बच्चों को ये फ्यूज टर्मिनल क्या होता है? जी सर, फ्यूज टर्मिनल बेसिकली हमारा फ्यूज रखने के लिए होता है। इसका एक लाइक क्या कहते हैं, केसिंग होती है फ्यूज रखने के लिए हमारे पास, इसकी फ्यूज की, जो हमारे पास PLC में लगता है उसकी, उनकी आयोस में। तो ये होता है सर। भाई देखो, मैं समझाता हूं डिटेल में। ये फ्यूज टर्मिनल क्यों लगाते हैं? फ्यूज टर्मिनल इसलिए लगाते हैं कि हमें आगे अपनी PLC की जो भी हम लगाने जा रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो फ्यूज टर्मिनल के अंदर होता क्या है कि एक छोटा सा 1 एम्पेयर का या 0.5 एम्पेयर का फ्यूज लगा होता है। उस फ्यूज से वायर इनकमिंग और आउटगोइंग जाती है और PLC की पावर सप्लाई में जाके या PLC को पावर अप करती है, उसकी आयोस को। खास तौर पे जो PLC की आयोस होती है ना, उससे पहले ये, इसको कहते हैं मार्शलिंग कैबिनेट, यही कहते हैं तला, क्या कहते हैं? यस सर, मार्शलिंग कैबिनेट, ठीक है। तुम्हारी ये जो फ्यूज मार्शलिंग होती है ना, इसके अंदर तुम्हारी ये FBIs कहलाती हैं। FBI बच्चों ये लिख लो, FBI, फ्यूज ब्लोन इंडिकेशंस, ठीक है। ये FBIs कहलाती हैं तुम्हारे मार्शलिंग कैबिनेट के अंदर, और ये तुम्हारी जितनी भी आयोज है ना PLC के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है। इन केस किसी भी आयो जो आप यूज कर रहे हो उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, या उसमें कोई फॉल्ट आता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट इस तरह करती है कि ये फ्यूज ब्लो हो जाता है और वो आगे से बच जाती है डिवाइस, ठीक है। तो तुम लोगों ने हमने कितने आयोस की PLC लेना चाहेंगे? 4 आयोस बहुत है, 4 FBIs ले लेना, ठीक है। 4 फ्यूज ब्लोन इंडिकेशंस हो गई, और अब तुम लोगे PLC नेक्स्ट, ओके। उससे पहले तुम एक और काम करोगे, लोग यहाँ पे मैंने देखा था एक सर्च प्रोटेक्टर। नहीं लेने की, ये नहीं लेने की जरूरत, ठीक है। हम उठाते हैं यहां से एक PLC, ये बड़ी है, हम छोटी लेते हैं।
ओके, ये वाली पीएलसी उठा लो। ये तो खैर काफी बड़ी हो गई है, जरा छोटी वाली लेते, कम आयोज वाली लेते। चलो खैर, तुम लोग कोई भी पीएलसी उठा लेना, AXL करके कोई भी उठा लेना, ठीक है? कोई भी मॉड्यूल उठा लोगे तुम लोग, ठीक है? सो हियर इज योर प्रोजेक्ट रेडी। अब इसमें एक चीज और लगाने की है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या आपने लगाना है। वो आपने लगाने हैं सर्च प्रोटेक्टर, बट these सर्च प्रोटेक्टर शुड बी DC सर्च प्रोटेक्टर्स। बच्चों इतना हो जाएगा? चलो वो नहीं लगाना, इतना ही कर लो, हो जाएगा ये काम? यस सर, हो जाएगा। यस सर। यस सर। ओके ओके, सो दिस इज योर प्रोजेक्ट, लगा ही दे। ठीक है जी। ये तुम्हारा 5 से 10 मिनट का प्रोजेक्ट है, इसको फटाफट करो और अपना सिनारियो एक्सप्लेन कर लेना कि तुमने कितनी रिलेज ली और तुम कितनी आयोस का सिस्टम लेना चाह रहे हो। अब देखो ये 4 मैंने आयोस ली हैं, राइट? तो तुम लोग 8 आयोस भी ले सकते हो, तुम अपने हिसाब से आयोस लेना, उस हिसाब से तुम FBI सिलेक्ट कर लेना, आगे PLC लगाना, एंड योर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, ठीक है? इसकी फिर तुमने फाइल की कॉपी हमें अपने टीम लीड को भेजनी है, वो उसको रीचेक करेगा, चेक करने के बाद वो जिनको वालों को बता देगा कि हाँ जी इसका प्रोजेक्ट ठीक है, और तुम लोगों को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। मेरे पास कोई नया सर्टिफिकेट लेने के लिए, और जिमको वालों को कोई लिंक्डइन पे मैसेज ना करे कि सर्टिफिकेट दे दें, ठीक है? सेकेंडली, आपने अपना प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों को जिस तरह आप लोग अपने सर्टिफिकेट्स लगाते हैं ना बच्चे, तो अगर सर्टिफिकेट लगा रहे हो और अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना प्रोजेक्ट भी लगाओ फिनिक्स कॉन्टेक्ट का, तो तुम लगा सकते हो, इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन, ठीक है? मतलब लगा सकते हो और नहीं भी लगाओ, कोई मसला नहीं है, बट प्लीज मुझे टैग नहीं करना, वरना पूरी दुनिया मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करने लग जाती है। अब पूछो, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो। सर इसकी PDF बना के देनी है अपने कोऑर्डिनेटर को। यस, बना लेना। सर वो जो एक और प्रोजेक्ट आपने, जब यही प्रोजेक्ट बना के भेज दें तो कोई इशू तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, तुम अपने टीम लीड को दे देना। ओके सर, ओके। सर जो आपने एक और वो एक्सेल शीट बनाने को कहा था प्रोजेक्ट का, वो भी अगर हम इसी के साथ ही एक ही दफा में सबमिट करा दें टीम लीड को, तो वो भी सही है? कर लो, बट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक रखना। लिंक्डइन प्रोफाइल टीम लीड तुम्हारी चेक करेगा, अप टू द मार्क होगी तो फिर सारी चीजें तुम लोगों को मिलेंगी। और ये किसी ने आर्टिकल गलत लिखा है, 2966171 है, इट्स नॉट 29661। ये समरा, इसको जरा पूरा लिखो, 29661 फिर 71 भी है, ठीक है? आई बिलीव प्रोजेक्ट इज वेरी इजी। तुम सब, अच्छा फिजा शेख पूछ रही है फाइनल सबमिशन की डेडलाइन क्या है? भाई आज से 1 हफ्ता डेडलाइन है, ऑल्दो ये काम 5 मिनट का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ। 1 हफ्ते में अगर प्रोजेक्ट रिसीव नहीं हुआ तो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। बच्चों कितनी देर का काम है ये बताओ? सर मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट्स का काम है, ठीक है? 1 हफ्ता काफी नहीं है इस काम के लिए? यस सर, इनफ है ना? ठीक है, तो बस ठीक है। सो डिनरिल सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखना था? तुम सिंपली डिनरिल का ऊपर ऑप्शन, ये किसी ने रिकॉर्ड किया बाय द वे सेशन? यस सर। बस ठीक है, रिकॉर्ड किया तो बेस्ट है। मैं फिर भी तुम्हें बता दूं डिनरिल कैसे सिलेक्ट करनी है। न्यू प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है? ये पड़ी हुई कोने पे माउंटिंग रेल, ठीक है? क्लिक की तुमने, ओके किया, ये तुम्हारी रेल आ गई, सिंपल, राइट? ओके बच्चों, हैविंग सेड दैट आई होप यू हैव एंजॉयड द होल इंटर्नशिप, और इंशाल्लाह सेशंस में आते रहना, जो भी फर्दर कोई वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं तो उसमें आते रहना, और लिंक्डइन पे एक्टिव रहना हमेशा। जैसा कि मैं कहता हूँ, लिंक्डइन को नहीं छोड़ना, अपने लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है। और नेक्स्ट इंटर्नशिप इंशाल्लाह जो दिसंबर में होगी, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनसे फिर मुलाकात होती है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।